Okay. You wrote till conditions for gratuity payment. Settle down fast. You wrote till conditions of gratuity payment, right? यहाँ तक लिखे थे conditions for gratuity payment, है ना? Looking so blank. Yes, ma'am. 6 point लिखे थे. What were we doing in the last class? We were doing Payments of Gratuity Act 1972. Okay. See, gratuity is a social security legislation which is given as a welfare, as a retirement benefit to cover certain contingencies of life. It is passed by central government, so it extends to the whole of India. Earlier, it was not applicable to Jammu and Kashmir, but after application of Article 370, it is also now applicable to Jammu and Kashmir. It is applicable where? It is applicable in all the industrial establishments like factories, mines, plantations, schools, colleges, trusts, society, shops and establishments where at least 10 people are employed. There should be a minimum of 10 persons employed for gratuity to be the act to be there in that establishment, and it is passed by central government. Okay. The eligibility condition is that you should have rendered at least 5 years of continuous service to that organization for availing the facilities of gratuity. Okay. गवर्नमेंट अभी बात कर रही है कि इस 5 साल को 3 साल पे डाल देने के लिए, क्योंकि स्विचिंग रेट ज्यादा बढ़ गई है. अब people they tend to leave organization in a less short period of time. So as of now, this is 5 years of continuous service, but this provision shall not hold true in case of death and disablement. In case a person dies or is disabled, what happens that your payment will be done earlier, even before 5 years. There are certain conditions in which payment of gratuity is done: superannuation, voluntary retirement, resignation, chronic disease, death and disablement. You have written this in your copy. And since this is a non-contributory social security legislation where you do not need to make any contribution, this is completely given by employer to you. Therefore, the employer has the right for wholly or partly forfeiture of your gratuity payment. In case of what? One, in case of your major misconduct, anything you have misconducted in your organization, look at your copy. Don't look at my face. Second is damage to employers' property or moral turpitude, riotous and violent behavior. Okay. Now, यहाँ तक we have talked कि gratuity मिलनी चाहिए, but gratuity के लिए eligibility 5 years of continuous service है. But gratuity कितनी मिलनी चाहिए? क्या है उसका calculation? 365 दिन की सैलरी तो गवर्नमेंट देती ही है. सॉरी, जो भी एम्प्लॉयर होगा प्राइवेट या पब्लिक, 365 दिन की सैलरी तो मिलती है. इसमें 15 दिन की सैलरी और मिलती है. समझ में आया? That is a huge amount at the end. See, हाँ, कह सकते हो 380. देखो, 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. पहले समझो एक बात. एक होता है पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द अदर वन इज सीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आपको जो भी हम बता रहे हैं ये आपके बीबीएम के अदरवाइज भी कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यू हैव नॉट येट स्टडीड एचआर. जब आप एचआर पढ़ेंगे 3rd ईयर में तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत होगी. तो डोंट थिंक ये बस पेरोल में बस उसी का पार्ट है. पेरोल इज अ पार्ट ऑफ एचआर. So there are 2 kinds of organization. One is perennial organization and the other one is seasonal organization. Perennial organization is that organization जहाँ 12 महीने काम होता है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, ईटा की फैक्ट्री. ठीक है. बट कुछ organizations ऐसे भी होते हैं जहाँ 12 महीने काम नहीं होता है. These organizations they work for a maximum of 7 months in a year, not for 12 months. तो जो पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पर कि 12 महीने काम होता है, वहां 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ये तो गवर्नमेंट का फिक्स्ड है. यू कैन से भाई बोनस की जैसा ही समझ लो. और जो सीजनल होते हैं उसको 7 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है क्योंकि वो पूरे साल काम नहीं करते हैं. ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी इज अ काइंड ऑफ बोनस कि आप हमारे यहाँ बड़े लंबे समय तक काम किए, आपने सर्विस भी चेंज नहीं किया, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड दैट आई एम गिविंग. इट्स काइंड ऑफ बोनस दैट आई एम गिविंग.
इससे आपका कोई कंट्रीब्यूशन काटा नहीं जाता, सिर्फ ये एम्प्लॉयर कंप्लीटली वो एक पैसा आपको देता है। आप लिखिए अपने कॉपी में कि टू दिस वाज स्टार्टेड टू रिवॉर्ड द मेरिटोरियस सर्विस ऑफ द वर्कर्स। पहले जो बड़े बड़े मालिक लार्ज स्केल एम्प्लॉयर देते थे वो इसीलिए देते थे कि हम बड़े खुश हैं कि तुम इतने सालों तक हमको अपनी सर्विस दी है। अब धीरे 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 उन्होंने वर्कर्स ने इसको अपना अधिकार समझने लगा, ठीक है, वो अपने अधिकार समझने लगे कि आपने उनको दिया सर्विस तो अब तो ये मिलनी ही मिलनी है। तभी तो ये हुआ कि जब वो नहीं देने की बात करने लगे या कोई कंडीशन आया तो वो कोर्ट में केस करने लगे, ये तो मेरा अधिकार है, ये दे नहीं रहे तो पैसा। वैसे ही ना ग्रेच्युटी का फॉर्म चेंज हुआ, बोनस भी वैसे ही मिलता था। बोनस के लिए भी कुछ चीजें लेबर ने यूनाइट करके जबरदस्ती भी ली है, ग्रेच्युटी उसमें से एक है, बोनस उसमें से एक है। हर चीज होता है ना, यूनाइटेड यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ा ग्रेच्युटी भी उसी तरीके से लिया गया। ये 15 दिन का वेज ऑर्गेनाइजेशन ये वाला ना, तुम बस समझ लो, पॉइंट बता दी तुमको, इससे मतलब है। ये हमेशा याद रखना, ग्रेच्युटी में कोई पूछेगा कि कितने दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है तो क्या बोलोगे? 15 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब समझो, मतलब जैसे 2022 में, मान लो 2024 में तुम कहीं ज्वाइन किए, ठीक, 24 में ज्वाइन किए और 5 साल के बाद या मान लो कि 2030 में तुमने छोड़ दिया, लगभग 6 साल काम किया, तो तुमको ग्रेच्युटी पेमेंट मिलेगा। माने तुम 5 साल से ज्यादा कर रहे हो, देन इट मींस दैट यू आर एलिजिबल। अब तुम्हारा 2024 का 15 दिन, 25 का 15 दिन, 26 का 15 दिन, उसी तरीके से 30 तक 15 दिन, इतना जोड़ करके तुमको ग्रेच्युटी का पेमेंट मिलेगा। क्या हुआ? Need to go out? Okay. ये 15 दिन का पैसा कटेगा नहीं, मिलेगा। हाँ, तो वो तो जो उस साल का सैलरी है पेड अमाउंट उसकी बेसिस पे। हाँ, अभी वही बताया। ये 15 दिन का वेज आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। 15 दिन का वेज कैलकुलेट करने का मतलब 15 दिन के किस वेज पे, ठीक है, 15 दिन के किस वेज पे, उसके लिए आपको एक दिन का वेज निकालना होगा। देखो, मंथली वर्कर्स का जो मंथली जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनका तो पर दिन का वेज निकालना आसान है। मंथली का जो सैलरी है उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो वर्कर्स होते हैं, ऐसे भी तो एम्प्लॉइज होते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह में काम करते हैं, जिनके हर दिन का सैलरी ऊपर नीचे होता है। किसी दिन ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो ज्यादा पैसा उस दिन का वेज बना, तो उनका वेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। देखो, ये फॉर्मूला लिख लो, बाद में एरो करके डाल देना, ठीक है। One day wage of a daily wage worker. One day wage of a daily wage worker is equal to last 3 months salary, 3 months wage divided by number of actual working days. One day wage of a daily wage worker is equal to last 3 months wage. देखो, कोई अगर मान लो 1990 में ज्वाइन किया और वो 30-40 साल मान लो काम करता है, 2030 में वो रिटायर करता है,
तो तुम जब उसका वेज कैलकुलेशन करोगे 1990 की सैलरी अगर जोड़ोगे तो अभी के हिसाब से उसका कुछ भी पैसा आएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट, वेरी मीगरी अमाउंट। इसीलिए हम लोग रिसेंट सैलरी लेते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। जब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है, रिटायर होता है कोई, लास्ट मंथ का सैलरी लेते हैं। कभी वो कोई 20 साल से काम कर रहा है तो 20वें साल पे जो उसका सैलरी उस पे उसको ग्रेजुएटी मिलेगा, उस पे ग्रेच्युटी नहीं, आपका सैलरी सीधा उठाया जाएगा कि लास्ट मंथ में आपकी सैलरी क्या है डिवाइडेड बाय 26, 4 संडे हटा दिया जाता है उसमें से। इसीलिए उसमें इसमें देखो ऊपर में है नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, उसमें भी जितना कंपनी का वर्किंग डेज हुआ है 3 मंथ में उतना ही कंपनी में अगर मार्केट यू नॉट ओके कांशी गो आउट ऑफ द क्लास इफ यू फील लाइक, ठीक है। ये समझ में आ जाए। अब देखिए इससे क्या होगा, लास्ट मंथ वेज में एक दिन का सैलरी निकल जाएगा, एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। इससे कितना दिन का एक्स्ट्रा मिलता है? 15 दिन। उसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से और मान लो कि 10 साल काम किया, इंटू 26, समझ में आया। ये जो वेज होता है ये बेसिक और डीए प्लस करके मिलता है, अलाउंस पे नहीं मिलता है, बेसिक एंड डीए को लिया जाता है। पीएफ का पैसा बेसिक पे मिलता है। देखो तुम लास्ट महीने में काम, मान लो कि सितंबर की मेरी सैलरी निकालनी है और यही फॉर्मूला है, इस संडे हटा दिया जाता है। मेरी लास्ट मंथ की सैलरी क्या होगी, लास्ट मंथ यानी सितंबर का सैलरी डिवाइडेड बाय 26, एक दिन की सैलरी निकल जाएगी ना सितंबर की, एक दिन। अब पूरे साल का 15 दिन का मिलेगा एक्स्ट्रा, 15 दिन एक्स्ट्रा, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक साल का निकल गया। अब नहीं, एक साल का 15, ठीक है। तो उस साल का निकल गया इंटू 50। अब मान लो कोई एम्प्लॉय 10 साल काम किया, 20 साल काम किया तो इंटू 20 कर दो, ठीक है। ये काफी हैवी अमाउंट हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी का पैसा, क्योंकि ये जो बेसिक होता है वो किसी की सैलरी लगभग नहीं, प्राइवेटली हम ये किसी को कहते हैं नहीं, पीएफ इज डिफरेंट, पीएफ अलग है और ये भी अलग है। हाँ पीएफ पे थोड़ा सा बताएंगे, पीएफ बताना है, ईएसआई बताना है और एक पेरोल का फंक्शन और एडवांटेजेस लास्ट में। ये सिर्फ ग्रेच्युटी के नाम से जाता है, ये ग्रेच्युटी ही है, मतलब उसके अलावा ठीक है। आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होता है? राइट आउट। अच्छा एक और चीज देखिए, अगर किसी ने, जब हम लेंथ ऑफ सर्विस डिटरमिन करेंगे, किसी ने अगर 27 years 7 months 2 days काम किया, किसी ने 12 years 5 months 22 years 5 months 1 day। मैम आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आप लेंथ ऑफ सर्विस जितना साल होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना सारा ग्रेच्युटी निकालने के लिए। 27 साल 7 महीने 2 दिन अगर किसी ने काम किया, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना साल मानेंगे? नहीं 27 साल। अच्छा कितने लोग 27 कह रहे हैं? 27 बताइए, हाथ उठाइए। 27 28 पे हाथ उठाइए। क्या हुआ? व्हाट आर यू थिंकिंग? यू डिडंट रेज योर हैंड इन एनी, बताओ। ये बिल्कुल लॉस्ट रहता है क्लास में। कंप्लीट ईयर होने पे ना, तो 7 महीना तो कंप्लीट हुआ नहीं। 27 ओके, और 28 पे हाथ उठाइए। ठीक है, इसको क्या मांगेंगे? 22। ये 28 साल होगा, ठीक है। 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा को हम पूरा एक फुल कंप्लीटेड ईयर नहीं, इसका लॉ ये जैसे कि 23 साल
सुनिए इधर, नए साल 6 महीने को हम 24 साल कंसिडर करेंगे। 6 महीने या उससे ज्यादा 1 साल कंसिडर होगा। 6 महीने से जो कम होगा उसको ओमिट कर देंगे। अब समझ आ गई बात? हाँ, लिखिए फटाफट, राइट डाउन। Rate and amount of gratuity. Rate, RATE, rate and amount of gratuity. साइट में ऐसे करके लिख लो, पेरिनियल 15 डेज, सीजनल 7 डेज। बस अपने समझने के लिए लिख लो, मार्क अ बुलेट पॉइंट एंड राइट डाउन। पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन में 15 दिन पर ईयर ऑफ सर्विस एंड सीजनल में 7 डेज। राइट डाउन। सीजनल पूरे साल काम नहीं होता, जैसे ओपन कास्ट माइंस, उसमें बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है तो वहाँ काम नहीं होता है। देखिए आप अपनी समझने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन पेरिनियल 15 डेज, सीजनल 7 डेज। Write down. In case of perennial organization, perennial जहाँ साल भर काम होता है, in case of मैम आप अनम्यूट हैं। the employer shall calculate the amount of gratuity on the basis of last wages of the employees. On the basis of last wages of the employees. Last wages of the employees. ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप ये चार्ट बना लीजिएगा। कैलकुलेशन समझ में आई? हालांकि कैलकुलेशन नहीं आपको जानना है, पर फिर क्या फायदा ना ग्रेचुटी पढ़ने से अगर वो पता ही नहीं है कि 15 डेज होता है, 7 डेज होता है। यू डोंट हैव टू डू कैलकुलेशन, बट एटलीस्ट यू शुड नो इट व्हेन यू आर नोइंग सम एक्ट्स। अब देखिए, कोई कानून बनाया गया तो वो बेनिफिट के लिए बनाया गया, पर जरूरी तो नहीं है कि उस कानून का पालन हो ही। उस कानून का उल्लंघन भी किया जा सकता है। ट्रैफिक रूल्स बने हैं पर तोड़ते भी हैं लोग, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, राइट? सो देयर इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं इस चीज के लिए। जैसे मान लो ग्रेचुटी नहीं दिया कोई एम्प्लॉयर, फिर ये तो लीगल राइट है, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, नॉमिनी में प्रॉब्लम हो गया, कोई नॉमिनी अलग से भी क्लेम कर रहा है कि नहीं हम ही नॉमिनी है और कुछ ड्यू करके ये इसको मिल रहा है पैसा, या लेट कर रहा है, या डिस्पोजल में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लेम कर रहा है और उसको नहीं मिल रहा है, तो इन चीजों को देखने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट होती है जो इस कानून को देखता है। ओके, सो लास्ट पॉइंट यू राइट डाउन, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। The appropriate government shall appoint controlling authority, controlling authority in adequate number, who shall work related to
who shall work related to gratuity payment, comma, disposal of claim, gratuity payment, comma, disposal of claim, disposal of complaints, distribution of gratuity and recovery of gratuity. Distribution of gratuity and recovery of gratuity. Disposal of distribution of gratuity and recovery of gratuity. Fine. With this, we complete gratuity. Fine. And see, there are many other aspects in this act also, like nominee का declaration, right? ग्रेच्युटी का डिस्ट्रीब्यूशन, एक से ज्यादा नॉमिनी होते हैं तो, अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो, अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो आप किसी को अपॉइंट करे होते हैं कि आप किसी में बड़े आदमी को, अडल्ट को, ठीक है, आप देखभाल कर सकते हैं. सपोज उस जो माइनर है उसकी देखभाल उसकी माँ ही करती है, तब तो गवर्नमेंट दे देगी 100% पैसा कि चलो माँ और बाप पे, इट्स लाइक वी कैन ट्रस्ट देम. बट कोई और आदमी है तो दे विल वेट फॉर टोटल विड्रॉल. they'll be only allowed to partially withdraw the amount. 18 साल के उसके होने के पहले तो बहुत सारी चीजें एक्ट में होती हैं. आप समझ सकते हैं कि कानून है तो कानून में बहुत सारा 6-5 होता है. ठीक है, तो this is all that you should know. Name in the nutshell आप ये याद बोलो. नॉमिनी बन गया तब तो जो एम्प्लॉई वो तो जिंदा है, फ्रेश नॉमिनी डिक्लेयर करेगा. क्या प्रॉब्लम है? मतलब लाइक अगर कोई अपनी माँ के या पापा के नाम से करना होगा तो उसके अंदर के बाद से वो नया फ्रेश नॉमिनी डिक्लेयर करेगा. हाँ, ठीक है, समझ में आई बात. एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, तो यू शुड नो हाउ टू स्टडी एक्ट. आपका जो एक्ट हम थोड़ा बताएंगे वो ESI एक्ट होगा. Since I'm giving you introduction in this class, next class I'll give you the writing part. See, social security legislation में you have written 5 different kinds of acts. Labor law से हम आपको explain किए कि social security सिर्फ एक type of labor law है. There are other types of laws also which are meant for different purposes. Which are the social security laws? Legislation, workmen compensation, maternity, PF, this payment of gratuity and ESI. तो ये भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन था. और एक और आपको हम लेजिस्लेशन बता रहे हैं which is ESI. तो ESI is a very huge, very exhaustive act. बहुत बड़ा एक्ट है. पूरा एक्ट पढ़ाने में लगभग 7-8 क्लासेस लग जाएंगे, इतना बड़ा वो एक्ट है. देखिए, ESI एक्ट का ईयर क्या है? 1948. आप समझ रहे हैं, ये आजादी के टाइम का, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस. कोई चीज रातों रात ड्राफ्ट नहीं होती, कानून रातों रात नहीं बनता है. बहुत सोच विचार, बहुत कंडीशंस, बहुत सालों तक देखने के बाद कोई कानून लाया जाता है. जैसे कश्मीर का आर्टिकल 370 जो एप्लीकेट हुआ, क्या वो आज की बात है? सालों सालों, for decades people have seen the pros and cons of that article, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एप्लीकेट किया आर्टिकल. उसी तरीके से जब आप ESI लाने की बात करते हैं तो बात ये होती है कि उस वक्त इंडस्ट्रीज में, देखिए आप इस चीज को बाइफरकेट कीजिए, आप इस चीज को समझिए कि अभी के जैसा प्राइवेटाइजेशन तब नहीं था. प्राइवेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ओनली आफ्टर LPG era. What is LPG? Liberalization, privatization. What? Privatization and globalization. Liberalization was making your rules liberal, licensing system वगैरह को थोड़ा liberal किया गया, ताकि लूज किया गया, ताकि लॉज 25 क्लियरेंसेस लेना पड़ता था. एक इंडस्ट्री है, कोई नया MRTP वगैरह पढ़े होंगे ना आप, तो फिर तो पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े क्या? ठीक है, तो उस वक्त की बात ऐसी नहीं थी. आजादी के टाइम पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बिग फैक्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज. वहां पर
देखिए फैक्ट्रीज एक्ट भी 1948 में लाया गया है। इसका मतलब कि फैक्ट्रीज के जो कंडीशंस थे वो भी खराब थे तब, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्किंग कंडीशंस का तब फैक्ट्रीज के लिए भी नहीं हुआ होगा। उस वक्त इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट करता था फॉर एवरी रीजन। एक तो कंजेस्टेड बहुत, वर्किंग कंडीशंस नहीं अच्छी। आप अगर यहाँ एक साल बिना एसी के इस कॉम्पैक्ट रूम में क्लास करेंगे ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, बट एसी जरूरी है। आप बंद कर दीजिए थोड़ी देर के बाद, वो एक अलग है। तुम इस कॉम्पैक्ट क्लास में, जब इस क्लास का फुल स्ट्रेंथ हो, दरवाजा लॉक हो, खिड़की लॉक हो, यू नहीं बैठ पाओगे, ठीक है, नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए एसी इज इम्पोर्टेंट एंड लेट अलोन एसी। तो हेल्थ इंश्योरेंस कुछ होता ही नहीं था वर्कर्स का, उनका हेल्थ डिटेरियोरेट करता था एंड द एम्प्लॉयर्स दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टुवर्ड्स द हेल्थ। ईएसआई समझने के पहले ये समझिए, इंडिया में 3 लेबर कमीशन आज तक बैठे हैं। ये सब सिर्फ सुनिए और लोड खाने की जरूरत नहीं है कि क्या टर्म्स है, ये है वो। सुनने से भी कई बार चीजें रिटेन होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉपी में लिखी जाए। There have been 3 commissions of labor जो अभी तक इंडिया में आया। पहला रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो 1939 में आया, उसका रिपोर्ट बना, रिपोर्ट सबमिट हुआ 1944 में। जेएच वाइटली उसके चेयरपर्सन थे। दूसरा नेशनल कमीशन ऑन लेबर, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो 1966 में बना और 69 में उसने रिपोर्ट सबमिट किया। गजेंद्र कटकर उसके चेयरमैन थे। और आखिरी लेबर कमीशन जो लेबर के चीजों को डिसाइड करता है, लेबर कमीशन, वो बना 1999 में और उसने अपना रिपोर्ट 2002 में सबमिट किया। उसके चेयरपर्सन श्री रविंद्र वर्मा थे। देखिए पहला रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो बना, उसने पहली बार एचआर को इंट्रोड्यूस किया काम में। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स का काम तो पहले भी ह्यूमन रिसोर्स कर ही रहा था, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। बट द ह्यूमन पार्ट ऑफ यू, द फैक्ट कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका घर भी है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको हेल्थ का इंश्योरेंस चाहिए, आपको थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आपको वेलफेयर के नाम पे भी कुछ चीजें चाहिए। ये होता है ना कि ह्यूमन का थोड़ा केयर जो होने लगा, वो फर्स्ट लेबर कमीशन जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर था, जिसके चेयरपर्सन जेएच वाइटली थे, ठीक है। इसी ने सजेस्ट किया, इसी कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो इंडस्ट्रीज में हमारे वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होनी चाहिए। इस बात को बहुत थोरो समझा गया। बीपी अदाकर एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपॉइंट हुए थे। इन बीपी अदाकर ने फिर रिसर्च किया, वो बाहर इंडिया से बाहर गए, वहाँ के वर्कर्स जो थे उन लोगों के कंडीशंस को देखे, रिसर्च किए, वापस आए और तब ड्राफ्ट, फिर उसके बाद इंडिया ने एक ड्राफ्ट किया स्कीम कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या स्कीम होना चाहिए। और फिर इसको आईएलओ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्टाफ आए थे, उन्होंने अप्रूव किया और तब जाकर के ये ईएसआई एक्ट आया। ईएसआई फेज वाइज मैनर्स में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों फेज वाइज में? क्योंकि इसमें मेडिकल फैसिलिटी की बात कही गई ईएसआई के हॉस्पिटल्स में। क्या हॉस्पिटल्स तुरंत बन जाते हैं? नहीं, हॉस्पिटल्स बनने में इट टेक्स सम टाइम फॉर मेडिकल फैसिलिटी टू बी प्रॉपर, ठीक है, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज टू बी प्रॉपर, फॉर the hospitals to be proper, and that is why ESI is one act जो एक phase wise manner में implement हुआ, ठीक है। ESI एक बहुत comprehensive और बहुत बेहतरीन एक्ट है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे ईस्ट एशिया में, कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक्ट की तरह देखा गया कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ESI बहुत ही अच्छा एक्ट है, ओके। इस एक्ट में कुछ चीजें कवर्ड हैं, जैसे कि जो हम आपको बताए थे सोशल सिक्योरिटी पढ़ाते समय, सिकनेस, ठीक है, मेडिकल, हाँ, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, ओल्ड एज,
डेथ में दो तीन चीजें, जैसे कॉम्पेंसेशन में डेथ में फ्यूनरल बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें फ्यूनरल बेनिफिट भी है कि घर के, क्योंकि ये वर्कर क्लास के लिए ना जनरली, ये ईएसआई में सिर्फ वो लोग कवर्ड होते हैं जो अप टू 21,000 जिनकी सैलरी होती है वो ही कवर्ड होते हैं। तो ये तो कम ही सैलरी हुई ना, कम वर्कर्स की जनरली होगी, तो अप टू 21,000 जिनकी सैलरी है वो ईएसआई में कवर्ड है। सरकार ने डिसेबल्ड जो लोग थे ना उनके लिए ये बढ़ा करके बेंचमार्क 25,000 कर दिया था, 25,000 किया था कि उनकी जिनका सैलरी 25,000 तक भी है लेकिन वो डिसेबल्ड है, तो उनको भी आप ले लीजिए कि अगर कोई बात होती है, फैसिलिटी होती है तो वो सरकार पेमेंट करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार पेमेंट करेगी, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लेना चाहती है ऐसे किसी भी आदमी को जो थोड़ा सा भी डिसेबल हो, एफिशिएंसी कम हो। डिसेबल की बात करती है, थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होता है तो निकाल देती है, ठीक है। तो 25,000 तक जिनका जो डिसेबल्ड है उनको भी कवर किया जाता है। कोई एक आध लेती होगी तो लेती होगी। ये हुआ। अभी कंट्रीब्यूशन ये है कि वर्कर अपने वेज का 0.75 कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर्स 3.25, टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन होता है ईएसआई का, ठीक है। 3.75 और 3.25 कंट्रीब्यूट होता है। आकांक्षा इज गॉन, ओके। 3.25 कंट्रीब्यूट, देखिए कितना थोड़ा सा अमाउंट है, 0.71% भी नहीं है ना। ये सिर्फ वर्कर्स को एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए है, इतना ख्याल इंडियन गवर्नमेंट रखती है। इसमें भी जिनकी सैलरी 137 रुपए या उससे कम है ना, जिस वर्कर की, अब तो खैर किसी की नहीं होगी, 137 एक्ट, ये कानून है, अमेंडमेंट होता है नहीं होता है, सरकारी चीजें हैं बहुत लेट, लेकिन 137 अब हार्डली किसी की सैलरी होती है फैक्ट्री में काम करने वाले, तो उनको ऐसे भी एग्जेम्प्टेड था कि उनको इतना सा भी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं, नॉट इवन मिनिमम वेज, ठीक है। सो कीप द क्लास टिल